I will try and do is, I'm going to use this book, which is called My Harb. God. Very famous autumn, you know. Yes, it is. I have marked pages in this book, which I'm going to read, and the poems are in English in this one, the one that I have, the version. So, usme se I'll read a few things to get our conversation started with Mr. Betab. So it will be a good mix. But Mr. Betab she Kashir pe kaat kara, isliye Kashir pe tikara bas thoda kaat, because he's such a great writer and he speaks in so many different languages. Of course, in some moment I might speak in Kashmiri a little bit, but I will use mostly his book as a reference to go through a conversation today. So as you know, to kickstart, this is it's a small conversation, so I don't want to make it too formal, but I will say that we are representing two non-profits here. One is from India, Millennium India Education Foundation, which is led by Dr. Kakru here, and they have been working for 20 years. A large part of their work is dedicated to spotlighting culture from the Himalayan region, especially J&K, which is where their history is. And I represent Peer Bagh, which is a small non-profit I founded in Austin, in Texas. And we also like featuring and spotlighting South Asian art and literature, but especially Kashmiri literature, simply because that is my background as well. And I think we need to learn more about this beautiful culture and language. कितने लोग मुझे मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं, अच्छा आप कश्मीर से हो, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी. Everyone when they hear it, they are like, अच्छा आप कश्मीर से हो, मगर many people don't even realize कि कश्मीरी actually में एक language भी है. I cannot tell you how many people have asked me, what language do you speak? Because they don't even know that. So then I almost feel that with such rich history, such rich culture, and such I guess treasures in our culture that we have, like Mr. Betab here, I want to do everything I can for the world to know that this is the work that we need to look at, because it's something for us to share and celebrate. And today is a special moment because Mr. Betab recently was awarded a state award in the 75th Republic Day, which I wanted to pause and celebrate. It's not every day that happens. So congratulations, Mubarak. So I will start with this, that I met Mr. Betab in August when we were doing an event in Dehradun, and he just, you know, जो लोग जितने बड़े होते हैं वो इतने amazing होते हैं. मतलब that's how you know that they are big, because they are so humble. So I was very young when we migrated, so I haven't spent too much time in the valley. Like I spent about 8-9 years. तो मैंने बेताब साहब से ना पूछा, which is it's a big faux pas, so I should start there, कि अपना ही थोड़ा मजाक भी बनाना चाहिए ना. तो मैं इनको मिली फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा पूछना चाहिए मुझे कि ये कहाँ से है. तो फिर because my both sides of the family are from Srinagar, so I asked him, अच्छा तो एक कैसे Srinagar Rozan, meaning where in Srinagar were you living? And Betab Saab was very kind to me, because it is such a weird thing to say and assume that he is from Srinagar. But he told me versus Rosa Akijai Akingam, and he mentioned that is where he was born. So it was after several months that I am now working on some projects, and I realized, why is this place so important? And Akingam, of course, it is it's a literary town where he came from, but there is also a lot of folk that was present in that place, which now, I guess, as a younger reader, I would say I've started discovering and learning about. सबसे पहले I am so obliged and humbled and thank you so much, उपासना जी, आपका भी धन्यवाद. रेस्पेक्टेड उदय कक्कू साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सरमाया है. मेरे लिए मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है. आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका अपनापन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ. मिलेनियम फाउंडेशन का भी, पीर बाग का भी, और जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत आभार. दूसरी बात, आपने मेरे लिए प्रेम से बड़े कुछ शब्द बोले, ऐसा नहीं है. देखिए, मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मैंने 2-4 शब्दों का रट्टा मार रखा है. और उसमें संस्कृत में एक सूत्र है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम. ऐसा है, आज भी हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय में विशेष रूप से, और कश्मीरी समुदाय में ऐसे ऐसे धुरंधर है जिनका साहित्य में और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. मैं कहीं भी नहीं हूँ, आप लोगों का प्यार है, इसलिए शायद मैं यहाँ आज हूँ हाजिर.
किनगाम मैं बार बार ये कहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं आप कहाँ रहते थे। मैं उनसे ये कहता हूँ और आज रिपीट करता हूँ कि ईश्वर की बनाई हुई इस सारी सृष्टि में जो सबसे सुंदर गांव है वो मेरा गांव है, उसका नाम किनगाम है। और वो गांव जब मैं कहता हूँ सबसे सुंदर है तो वहाँ के लोग, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हमारे 90 के हालात रहे, उसके बाद हमारे समुदाय के साथ विशेष रूप से और मेरे साथ में जो कुछ हुआ, उसके बावजूद वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। और ये पिछले 20-25 साल में ऐसा हुआ कि हमारे छोटे से गांव में 3-4 ऐसे विद्यार्थी निकल आए जिन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम पास किए और वो बड़े बड़े पदों पे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही जम्मू में सेक्रेटेरिएट गया था और एक मेरे बिल्कुल घर के पड़ोसी हैं जिनके पिता ने मुझे पढ़ाया भी है, वो डायरेक्टर जनरल बने हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सजाद गनाई साहब। एक और हैं तारिक साहब, ये नहीं वो युवा पीढ़ी के हैं, 90 के बाद के हैं और उन्होंने बहुत प्रेम उनका है हमारे साथ में, बहुत अपनापन है आज के हालात के बावजूद। लेकिन जो मुझे और जिस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया वो 2 चीजों ने किया। एक तो सुंदरता उस क्षेत्र की, नेचर। आपको शायद अजीब सा लगेगा, मैं जब ड्यूटी करता था श्रीनगर रेडियो में या टेलीविजन में और गाँव चला जाता था, मैं शाम को अपने घर में कमरे में नहीं बैठता था, मैं खेतों में जाके कहीं मुंडेर पे बैठ के उसको निहारता, जो सुंदरता वहाँ की है उसको निहारता, तारे गिनता रहता, वो खेतों में घूमता, उसका बड़ा प्रभाव है। और जो आपने कहा किनगाम, जो एक बहुत ही मशहूर जगह है, वो बेसिकली जो मेहरकुल रहे हैं, वो किनगाम के साथ में आपको आइडिया है ना, गाँव के साथ में छोटे-छोटे मोहल्ले होते हैं। तो हमारा जो बेसिकली मोहल्ला है उसको बनपुर कहते हैं। पूरा मतलब छोटा-सा टोला और बन नीचे वाला। और मोहरीपुर उसको मेहरकुल ने बसाया था जहाँ वो भगत थिएटर है, जिसमें मोहम्मद सुभान भगत ने बहुत काम किया, मोतीलाल केमू साहब ने बहुत काम किया, उसको रिवाइव किया उस प्रथा को वहाँ। मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने भगत थिएटर का ड्रामा अपने गांव में देखा। तो असर तो रहता ही है, उन सारी चीजों का असर है। लेकिन अल्टीमेटली जिस बात ने मुझे प्रभावित किया और मुझे बाद में साहित्य की और मेरी रुचि बढ़ी, वो बहुत बाद में हुआ जब मैं श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में पढ़ने गया। वहाँ कुछ मेरे मित्र थे जो सहपाठी थे, वो लोग रेडियो और टेलीविजन जाया करते थे, मैं उनके साथ वहाँ गया और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, रेडियो और टेलीविजन के हमारे जितने भी बड़े सीनियर थे उन सब का मुझे बहुत प्यार मिला। और एक तरह से मुझे चुनौती लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो बड़े-बड़े नाम गिनवाते थे, कविताएं कहते थे, वो डिस्कशन करते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। कश्मीरी में कहते हैं बोसुस हांगल सिंध पर आसान तिमन बुछान यम क्या कतकरान। तो बहुत ही अनजाना अनपढ़ सा आदमी था, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे जब वहां गया तो उसका प्रभाव वहां से मैंने शुरू किया। फिर अल्टीमेटली जो कॉलेज के समय में फिर मैंने वहां टैगोर हॉल में ड्रामा भी किए, एज एन एक्टर मैंने काम किया प्लेज में। और धीरे धीरे बस वही प्रभाव रहा। फिर बाद में वहां मुझे एक सीनियर कुलीग मिले, बशीर शाह साहब, राइटर थे, कवि थे और रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा बायोलॉजी से नौकरी एक काम करना, नौकरी तो मिली, हर महीने जब वेतन मिलेगा तो एक पुस्तक हर महीने खरीदते रहना। उनकी इस बात को मैंने पल्लू बांध लिया और मैंने यही किया, फिर पढ़ता रहा। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मैं दिल्ली गया और जब मैं दिल्ली पहुंचा वहां हिंदी में बस का नंबर लिखा रहता था और मैं घंटों बैठा रहता था बस स्टॉप पे। मुझसे बस का नंबर नहीं पढ़ा जाता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी और किसी से पूछने में भी शर्म आती थी कि ये कहेगा देखो ये अजनबी है, कहाँ का है, पता नहीं वो कैसा होगा। और फिर ईश्वर की इतनी कृपा रही, फिर बाद में मुझे
एक तो भारत सरकार का हिंदी का अवार्ड मिला मुझे, मेरी जो पुस्तक है मैं कवि नहीं हूँ उस पे, और उसके बाद मुझे जो वार्धा का महात्मा गांधी जी ने, बापू ने जो वर्धा का जो उन्होंने एक संस्था बनाई है, वहाँ का हिंदी का अवार्ड मुझे मिला। तो फिर कॉलेज में नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं पढ़ा, घर पे पढ़ता रहा, रेडियो सुनता रहा, और रेडियो में जो हिंदी के दिग्गज लोग थे उनके पास जाता था बहुत ही विनम्र होके कि मुझे आपके साथ स्टूडियो में जाना है, देखना है आप कैसे पढ़ते हैं। धीरे 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 यही मेरा हर उर्दू का भी है, मैंने उर्दू भी कहीं नहीं पढ़ी और अंग्रेजी तो मुझे आज भी नहीं आती है, लेकिन वो थोड़ा सा एक अंदर, और मेरा सौभाग्य रहा जितने मेरे बड़े थे, सीनियर थे, उन सब का प्यार मुझे मिला, सब ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं धीरे धीरे चलता रहा। और मैं 4 भाषाओं में मेरी पुस्तकें हैं, और उसका कारण यह है कि मुझे 4 भाषाओं में से एक भी भाषा ढंग से नहीं आती है। अगर ढंग से कोई भाषा आती तो मैं उसी में बहुत एक्सपर्ट हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो कभी विचार अंग्रेजी में आते हैं। अच्छा, उसका एक कारण है, अंग्रेजी में जो आपने दिखाई ना पुस्तक मेरी, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने एज ए न्यूज रीडर कोई 20-25 साल नौकरी की, फिर मैं कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा, एडिटर भी रहा, लेकिन बेसिक मेरा ऑल इंडिया रेडियो में समाचार पढ़ने का काम था। और वहाँ बुलेटिन, जो मेजर बुलेटिन आता है वो अंग्रेजी में बन के आता है, और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको रीजनल लैंग्वेज के न्यूज रीडर को स्वयं उसका अनुवाद अपनी भाषा में करना पड़ता। तो 20-25 साल वो अंग्रेजी पढ़ते रहे, पढ़ते प्रधानमंत्री ने क्या बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, विदेश के किस नेता ने क्या बोला, वो सारी भाषाएं अंग्रेजी की, उनकी डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट लोगों की, और उसकी शब्दावली, और फिर डिक्शनरी साथ में रखते थे, लफ्ज कहाँ है। और मुझे लगता है कि डिक्शनरी का कोई ऐसा लफ्ज नहीं होगा जो मैंने कभी डिक्शनरी खोल के समझने का प्रयास नहीं किया होगा। तो अंग्रेजी वहां से आई, तो कभी विचार अंग्रेजी में आते हैं। कश्मीरी मेरी मातृभाषा है, हिंदी का असर, उर्दू का असर दिल्ली में रहा। उर्दू भी मैंने नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ी थी, ऐसे ही लोगों से पढ़ के, अखबार पढ़ के, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही तो दिल्ली स्टेट का बेस्ट बुक अवार्ड भी मुझे मिला 2013 में। मेरी जो पुस्तक है उसमें उर्दू भाषा में, ऐसे ही कारवां चलता रहा। लेकिन अभी भी Yeah, अपने आप को मैं अनपढ़ ही कहता हूँ। मैं अभी कुछ कितना, देखिए मैं बताता हूँ आपको, पूरे संसार में कितना ज्ञान है, आप कितना ग्रहण करेंगे। और एक आयु होती है जब आदमी कुछ सीख पाता है, पढ़ पाता है, तो उस आयु में मैं गाँव में रहा। ऐसा कुछ हमारे घर में कोई ऐसा विशेष वातावरण नहीं था लिखने पढ़ने का। एक बात बहुत थी कि हमारे घर में एक नियम था कि सुबह भी पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है। सुबह नंगे पाँव मंदिर जाना था, जो हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर था। सुबह जल्दी उठना है, मुंह हाथ धो के, नहा के, पैदल जाना है मंदिर, पूजा करनी है, और शाम को आके भजन गाने हैं। और मेरे दादाजी थे कृष्ण जो राजदान के, और जो हमारे भक्ति कवि हैं उनके भजन बहुत गाया करते थे हम साथ में। तो वो एक उसके साथ में प्रेरणा रही, और इसीलिए मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं उस लायक नहीं था, लेकिन मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो फेलोशिप मिली उसमें मैंने कश्मीरी भक्ति काव्य पे शोध किया। ये मेरी कहानी है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जो ये इस तरह के लोग होते हैं कि जिन्होंने, जो इतने अकम्प्लिश्ड होते हैं, दिस इज रियली द साइन ऑफ दैट, बिकॉज यू आर सो हम्बल। और ये देयर इज रिसर्च हियर व्हिच विल शो कि सबके लिए, कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, दे एक्चुअली आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकर्स। मतलब उनके दिमाग में देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग व्हेन दे ऑब्जर्व एक्सपीरियंसेस। क्योंकि कुछ चीजें आपसे मैंने भी पूछा था कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस इंसान से किस तरह बात करनी है, बट यू, आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी कि यू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग टू समवन इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंड योर माइंड इज शिफ्टिंग। तो उससे आइडियाज भी अलग आते हैं, बिकॉज वी नो दिस दैट लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस नॉट ओनली हाउ वी राइट बट व्हाट वी राइट अबाउट। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट 4 लैंग्वेजेस में आप लिखते हैं, और हर लैंग्वेज में डेप्थ है। बट एक मैं जरूर पढ़ूंगी, दिस इज फ्रॉम his book, poetry collection, Harud. And I will read this short poem for everyone to understand, because to me, the reason I'm going to read this to you is related to a question jo main aapse puchungi. But let me read the poem first. It's called Existence.
We speak 100 lies to establish but one truth. I wonder, though, if our existence too is a truth that we are at loss to establish. I thought this is such a beautiful, it's a short poem, but so beautiful. And somehow ये पढ़ने के बाद मुझे लगा it has these Sufi elements in it. What is the truth? What is the, और वो कश्मीरी writing में बहुत पहले से है. That is at least the instant feeling I got. तो मुझे ना बहुत मन किया कि because you are going to be here today, तो I'll ask you this question. As you're thinking about what is our existence for, what is the truth, ये जो आप लिखते हैं, what is the writing for? Like आपने कभी मतलब what, how do you, with what intention and purpose are you writing each time you get into this creative world? I just thought I'll ask you this question because to me it felt like ये वो सूफी सा था ये कि मतलब you know it made me question what are we living for? So please आप इसके बारे में बताइए थोड़ा कि what goes in your head when you are thinking about creating something. क्या किस लिए लिखते हैं हम? Why is it important for us? देखिए, आचार्य मम्मट ने इसके बारे में बहुत पहले कहा हुआ है कि जो कवि मतलब सिर्फ पोइट नहीं, कवि मतलब ड्रामा करने वाला, ड्रामा लिखने वाला, जो साहित्य से जुड़े हुए सारे लोग हैं उसको कवि ही कहा है संस्कृत भाषा में। उसको एक बहुत बड़ी जो एक तो यश मिलता है उससे, ज्ञान आप बांटते हैं, अपना अनुभव बांटते हैं। और एक अजीब सी बात है कि ये जैसे पता नहीं ये कहीं अभद्र भाषा न हो, जैसे प्रसव पीड़ा होती है माता की, कुछ ऐसा ही अनुभव होता है कि मुझे कुछ कहना है और जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक अंदर एक बेचैनी सी रहती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जो मेरे दिमाग में जो कुछ भी ख्याल आता है, अगर मैंने उसको तुरंत कहीं कागज पे सुरक्षित नहीं किया, फिर चाहे मैं कितना प्रयास करूं वो खो जाता है, वो नहीं मिलता है। और जो आपने लिखा उस समय, उसमें अगर आप फिर बाद में संशोधन करना चाहें, कोई चेंज करना चाहें, कोई अमेंडमेंट करना चाहें, तो उसकी पूरी जो कृति है वो बिगड़ जाती है, सूरत बिगड़ जाती है। तो ये कुछ है, कुछ ईश्वर की तरफ से कुछ है और मुझे पता नहीं लगता। और कई बार ऐसा आभास होता है कि अच्छा, ये कहीं गलती से मैंने किसी और का कॉपी करके तो नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है क्या? इसलिए मुझे आदत हो गई है, मैं कभी भी कुछ लिखता हूं, मैं सबसे पहले ऊपर ओम का शब्द लिखता हूं, ओम का उच्चारण करता हूं, उसके बाद अपना नाम लिखता हूं, ताकि ये मुझे विश्वास रहे कि ये मैंने ही लिखा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लगता है ये तो मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं ही लिखूंगा। अब ये कविता की जो बात है ना, मुझे माँ ललेश्वरी का काफी वो है मेरे दिमाग पे, और मेरे साहित्य के दृष्टि में उनका बड़ा प्रभाव है। और इंसान की शुरू से ये एक बड़ी विडंबना रही है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, मुझे क्यों वापस जाना है। अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है और ईश्वर इतना प्रेम करने वाला है, तो ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है? जब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ मुझे वापस बुलाता है, मुझे पीड़ा होती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने देखा था कि वो एक बूढ़ा लाचार है, एक लाश है, एक, तो ये क्यों है ऐसा? ये तो एक रहस्य है। एक तो ये है इस कविता में कि मैं कौन हूँ। जैसे आदि शंकरा के बारे में बड़ा मशहूर है कि जब वो अपने गुरु से मिलने गए और गुरु ने अंदर से आवाज दी कि कौन, तो उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, शिवोहम 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 की जो बहुत नेति, not this, not this, not this. यस यस, नॉट दिस नॉट नेत। तो क्या है ये, जब इतने महान लोगों की समझ में नहीं आया? ये एक पक्ष इसका। दूसरा पक्ष, ये 90 के बाद की कविता है। मैं कश्मीरी, कश्मीर में जन्मा, कश्मीर से प्रेम करने वाला, कश्मीर की मिट्टी मेरी माँ, फिर मेरा अस्तित्व क्या है? अब एक थोड़ा सा अनुभव ये हो जाता है कि आप किसी बात को समाचार पत्र का समाचार बनाएंगे या उसको आप कविता का कोई रूप देंगे। यही बात एक समाचार पत्र में कोई अपनी ढंग से लिखेगा तो वो न्यूज़ बन जाएगी और वो
बुक्स ऑफ वो है ना, आवर, बुक ऑफ आवर है ना, जो आपने अखबार पढ़ा फेंक दिया, तो अखबार में भी यही बात आ सकती है, यही आई यही बात। लेकिन इसको कविता का रूप देने के लिए वो एक फिर धीरे 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 एक अनुभव हो जाता है, एक आदत हो जाती है, और इंसान को लगता है कि मैं इस बात को कुछ इस ढंग से लिखूं कि हर पढ़ने वाला उसको अपने दृष्टिकोण से देखे। लेकिन मैंने जब ये लिखा तो मेरे बिहाइंड द ब्रेन जो है ना, वही है जो रहस्य है जीवन का, वो तो है ही है, लेकिन फिर विशेष ये कि क्या मैं कश्मीरी हूँ, क्या मैं भारतीय हूँ, क्या मैं इंसान हूँ, और मेरा अस्तित्व क्या है। तो उस तरह की कविता है ये। इट्स अमेजिंग। और आपने बीच में कहा ना कि मेरे को लगता है ये मैंने ही लिखा है कि नहीं, तो इससे आई वाज रिमाइंडेड, गुलजार साहब ने स्क्रीन प्ले लिखा था मिर्जा गालिब का, जो 80s में जो सीरियल दूरदर्शन पे आता था, तो उसमें स्क्रीन प्ले की किताब भी है, इट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली टाइम्स, उसमें वो स्क्रीन प्ले यू कैन रीड इट। तो उन्होंने मिर्जा गालिब की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसमें बताई है कि व्हेन ही वाज राइटिंग हिज कपलेट्स, तो वो क्या करते थे कि अपनी वाइफ की चुन्नी में एक गांठ मारते थे कि अब एक कपलेट, फिर दूसरा कपलेट, सो ही वुड रिमेम्बर इट लाइक दैट बिफोर वो रिकॉर्ड करते थे उसको। तो जब आप ऐसे कह रहे थे तो मेरे दिमाग में वो आया कि वो इस तरह से लिखते थे, बिकॉज ऑल पोएट्स हैव देयर स्पेशल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। एंड नाउ बिकॉज यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पोस्ट 90, तो मुझे ये भी एक पूछना है, और बिफोर आई रीड दैट आई हैव वन मोर पोएम व्हिच आई लव्ड इन दिस, व्हिच आई एम गोइंग टू रीड again, small portion, so if you allow me, it's called My Post Office. My village has a post office. It opens 10 to 5. The postman receives the dark, distributes some, returns a few letters, but a bundle is dumped in a corner, waiting for the recipients to return. Burnt houses do not acknowledge the dark. और ये ना, it was very Very powerful. touching one. Very touching. Very touching and very powerful. So ये तो मतलब this is an entire, ये the whole book has lots of things about experiences post migration. और मैं तो उसको migration भी नहीं कहूंगी, personally I feel like we were internally displaced. That is a better like term for me, because that's the truth of the situation. So आप, how did it influence your writing? मतलब इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारी poetry ऐसी है which is very shocking, it's deep, it's meaningful, and also like it pains me to read some of this, but yeah, this was such a like a visual reminder of what happens when people just were forced to leave home. तो क्या impact पड़ा आपकी writing पे? Did you start thinking and doing something different post migration? What was your writing journey after that? And add this Yes. also to the blank page, Brishnath ji, which is equally poignant, what Upasana said, that, the blank page and the destruction, those two other poems also, which triggers you something of your experiences, which are equally very vital and very powerful, very esoteric and very metaphysical. They have a metaphysical message also in those poems. Yes, yes, very true, very The true. blank page especially, sir, very touching. अच्छा, आप अगर मुझे आज्ञा दें, आपने जो पूछा मैं उसका उत्तर दे देता हूं, मगर उससे पहले आपने गुलजार साहब की जो बात की, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। गुलजार साहब ने एक हार्पिन कोलिन्स ने एक पब्लिश की किताब जो गुलजार साहब ने कंपाइल की 1947 से लेके 2 साल पहले तक, 2021 तक, इंडिया की सारी भाषाओं की एक उन्होंने सिलेक्शन किया पोइट्री का, उन्होंने चूज किए डिफरेंट पोएट्स ऑन डिफरेंट पीरियड्स। उसका नाम है किताब का ए पोएम ए डे, ए पोएम ए डे। यस सर। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, उसमें मेरी 2 कविताएं हैं। और पहली कविता आप ही की है शायद? वो पहली कविता मेरी नहीं है, पहली कविता किसी और की है, मेरी बीच में आगे है। लेकिन उन्होंने जब इस किताब का विमोचन होने के बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पोएम के ऊपर 2-4 मिनट बोला और बड़ी प्रशंसा की, तो मैं तो मुंह ऊपर हो ही गई। गुलजार साहब कहते बेसिकली ये है कि somebody appreciates you, वो ये है जो आपने बात कही ना। देखिए मैं बताता हूं, हम में से हर व्यक्ति कश्मीर से प्यार करने वाला है, और मेरा व्यक्तिगत ये था कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो उसके हैं, क्या कहते हैं इसको, मेजॉरिटी कम्युनिटी के बहुत फ्रेंड्स थे।
सडनली क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, सडनली क्या हो गया। और मैं दूरदर्शन में तब था, श्रीनगर दूरदर्शन में था, और उस समय हमारे डायरेक्टर थे दूरदर्शन के लस्सा कौल साहब। कौन से साल की बात है सर ये? 90 की, व्हेन ही वाज मर्डर्ड। और उस समय क्या हुआ, मैं न्यूज रूम में न्यूज बुलेटिन बनाता था। वो दूसरी बिल्डिंग में दूसरे कमरे में रहते थे, और उनका ये नियम था, वो 7 बजे अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आते थे और पूछते थे आज क्या है, बुलेटिन में क्या बनाया है। उस दिन, जिस दिन उनकी हत्या हुई, वो आए न्यूज रूम में और 2-5 मिनट रुके। मैं अपने कमरे से दूरदर्शन के गेट तक उनके साथ निकला। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और गाड़ी में बैठे और गए। 15 मिनट के बाद, और वो करीब 5-6 मिनट का रास्ता था, हम धीरे धीरे चल रहे थे, काफी बातें की। 15 मिनट के बाद फोन आया, उनकी हत्या हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गए थे, एसएमएचएस हॉस्पिटल। 1 घंटा पहले मैं उनके साथ बातें कर रहा था, 1 घंटे के बाद मैंने उनका मृत शरीर देखा, जिसपे गोलियों के निशान, मैंने 3 निशान गिने। उनके ज्यादा गोलियां लगी थी, मैंने 3 निशान गिने। ये आपको झंझोड़ के रखती हैं ये चीजें। और उनका दोष क्या था? कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इंसान को झकझंझोड़ कर रखती है ना, तो वही कविता में फिर सामने आ जाता है। ये कोई वो जो है ना, एक जिसको दिमाग में इंसान सोचेगा, वो नहीं है। ये आपके सामने जो हो रहा है, वो एक्सपीरियंसेस हैं ये सारी। इमेजिनेशन नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये वो सब कुछ है। अच्छा, मैं उसके बाद में वहां रहा ना, मैं बेसिकली दूरदर्शन श्रीनगर में तब था जब माइग्रेशन सब हुआ। मैं अपनी आंखों से देखता था। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। 4 महीने मैं अपने बाल नहीं कटवा सका। मेरे जूते का एक लेसिस टूट गया, किसी ने मुझे लेसिस लाके नहीं दिए, और मैं 4-5 महीने बिना लेसिस वाला शू बिना लेसिस के पहनता रहा। और वो दिन और आज का दिन मैंने लेसिस वाला शूज नहीं पहना है। ये सारे जीवन के आपको तड़पा देने वाले अनुभव हैं, और आपकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और वो माइग्रेशन में अपने आंखों से देख रहा था। मेरे ऐसे अनुभव, एक मेरे रिश्तेदार थे, मैं वहां गया था कवरेज के लिए। उन्होंने मुझे कहा यार परेशान हो गए, मुझे यहाँ अगर इनके जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जानते हो, कर्फ्यू लगा हुआ, मुझे कर्फ्यू पास ला के दो, मैं निकलूंगा। मैं फटाफट गया, डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया, कर्फ्यू पास लेके दिया। उन्होंने एक ब्रीफ केस में एक नाइट सूट डाला, 2 कागज डाले एक छोटे से ब्रीफ केस में, और गए। और पीछे से उनका घर पूरा जला दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। और आके, वो बहुत बड़े रईस थे, और आके फिर वो यहाँ जम्मू में एक टेंट में रहने लगे। तो ये सारे अनुभव हैं जीवन के। अब सिर्फ ये है कि मैंने उसको अखबार की खबर नहीं बनने दिया, थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पे उसको इसमें डाल दिया। जैसे ये आप अगर इसको, सारी इसकी कविताएं हैं, इसमें एक विशेष बात आपको ये मिलेगी कि मैंने केवल कश्मीरी पंडित समुदाय की बात नहीं की है, मैंने चिट्ठी सिंह पोरा में जो हुआ उसकी भी बात की है। मेरे एक मित्र थे जो जर्नलिस्ट थे, सुजात बुखारी, वो अपने ऑफिस से नीचे आ रहे थे और उनको गोलियों से भून दिया गया। मैंने एक पोइम उनके लिए, उनको भी डेडिकेट की है इसमें, कि वो मानवता का जो नरसंहार हुआ है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए नहीं हुआ। वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो सब तबाही हुई वो मेरी और उसकी और इसकी तबाही नहीं है, वो कश्मीर की तबाही है। और किस कश्मीर की तबाही है? वो अभिनव गुप्त का कश्मीर है, वो लल्लट और मम्मट का कश्मीर है, वो कश्मीर है जहां बुद्धा की कॉन्फ्रेंस हुई, वो कश्मीर है जहां विष्णु का मंदिर है, वो कश्मीर है जहां ललेश्वरी ने जन्म लिया, वो कश्मीर है जहां नुंद ऋषि ने सबको एक पाठ पढ़ाया कि जीवन कैसे जीना है।
वो Shivpuri. मूलियों का जो कत्ल हुआ है वो मुझे बहुत तरसाता है, बहुत तड़पाता है, वो बातें हैं। Very true. Yeah, it's so true and deep. And, do you want to say something, Venkatesh? I saw you saying something. No, I saw the pain in his eyes, and especially, see, he at least, he is in a position to give a shape to his pain, मैं whatever he रो पड़ूंगा। मुझे I know, ये I know. बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है कश्मीर के साथ में। एंड मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, कश्मीर के बहुसंख्यक जो हैं, मेजॉरिटी वाले लोग, उन्होंने भी बहुत झेला है, उनके साथ में भी बहुत। लेकिन एक अंतर है, अंतर ये है कि जैसे कई लोग हैं जो इस राव में बह गए, मैं तो नहीं बहा, मेरा कोई दोष ही नहीं था, क्यों ऐसा हुआ। और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज अंतर थोड़ा एक्सप्लेन करना भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज देर आर ऑल कम्युनिटीज वर इम्पैक्टेड, वो पता है हमें, वी आर सीइंग दैट फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, बट आई थिंक देर इज something to be said about not having a way to go back to your roots when you don't live in that location, when you don't have a home anymore, and sort of identifying कि क्या identity है, अब क्या है हमारा culture, क्या है हमारी language when we are away from it. तो उसमें ना मुझे ये एक आपकी poem which I will highlight is called Migration, और छोटी सी है, so I will take your permission to read this because I think it has that ethos of when you are outside, what do you experience? And it says, my own shadow, how it overshadows my own size. But then, do I have a size? I ask, does a migrant, a stone, rolling down Harmukh have a size, have a substantive shape? Has it any weight? Yes, I ask. And this was very powerful to me because this is like, then you are grappling with this thing that who am I? Again, जैसे हमने वो existence वाली poem में देखा, but this one is specifically putting that migrant into picture more visually, and it makes me feel that ऐसे हम बोलते हैं ना कि culture is an ever moving thing, it doesn't stagnate, it's always growing, but how you have a snowball कि वो जहाँ जहाँ गोल घूमता है snow का ball, it takes new things from different cultures, but when you lose that environment, when you no longer have that place where you came from, who are you? Because there are people, are poets here who will say this, that where you are from is who you are. And this is very true for many people, क्योंकि हमारी sense of identity, language, history comes from there. So ये जो आपने लिखा है, it's just so poignant and powerful when you think about it. Or I don't even have to put myself in this position, but anyone who's moved, they can understand, like they question, क्या है मेरा अस्तित्व? Who am I now when I am no longer associated with where I was from? So how do you, like, now that we are in the situation that we are in, कि हम बाहर हैं, how do you grapple with this, in your writing? How does your, matlab, if you're living in the valley, there is something that you're experiencing, which is also tragic. But then the fact that you will lose your roots is a whole different kind of tragedy. So ये इसमें ना है, इसमें throughout the book it is there. How do you sort of feel that what's going to happen in the future? How do you come to terms with the fact that maybe we are going to lose this richness because who's going to put it forward? Who's going to move it forward? Because कितने ही लोग हैं जिनको वो real life experiences nahi hai. Many kids who were born outside, many people who left when they were very young. So how do you see that? Will it end? Is my simple question. Like, how is this culture going to go forward? देखिए, दो चार ये इसमें ना बहुत ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सब ने जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये अनुभव किया होगा। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। जब हम भीड़ में चले जाते हैं, दूसरे किसी शहर में, दूसरी किसी जगह, वहां आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है और आपकी कोई मान्यता ही नहीं रहती है। आपने कितना ही कंट्रीब्यूट किया हो अपनी सोसाइटी में, आपका कितना ही अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रहा होगा, लेकिन जब आप दूसरे शहर में, दूसरी जगह जाते हैं, लोग पूछते हैं, अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो ये जो प्रश्न है ना, ये तीर की तरह चुभ जाते हैं। मैं कश्मीर में जाता था, मुझे सब लोग जानते थे, और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं।
मैं श्रीनगर गया था, बीच में किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता रहता हूं, तो एयरपोर्ट से नीचे उतरा और मैं काउंटर पे गया, जो प्रीपेड टैक्सी वाला था। मैंने उसको कश्मीरी में कहा मुझे TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के लिए एक टिकट दे दीजिए। तो उसने कहा इतने पैसे हैं, मैंने पैसे निकाल के दे दिए। देखिए बात क्या हुई, मैंने उससे कहा महजगस टूरिस्ट सेंटर तक गए, मुझे टूरिस्ट सेंटर रिसेप्शन सेंटर तक गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा इतने पैसे, 450 रुपए, बहुत पहले की बात है। मैंने 450 रुपए दिए, उन्होंने टिकट दिया, जो पर्ची है। पर्ची मैंने देखी, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। ना उसने मुझे नाम पूछा, ना मैंने उससे नाम बताया, सिर्फ मेरी आवाज, 2-4 शब्द सुन के उसने मुझे, एक ये अनुभव। दूसरा, एक बार मैं वापस आ रहा था एयरलाइन से, और जब वो बोर्डिंग पास के लिए वहां बैठा लाइन में, मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा टिकट दीजिए। मैंने उनको टिकट दिया, कहा अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, मैंने दिया। उन्होंने पढ़ा, ओहो अच्छा आप बेताब साहब हो। बिलीव यू मी, मेरा नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास में टिकट था, उन्होंने विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे बिजनेस क्लास में टिकट दिया। मैंने कहा सर आपसे शायद गलती हो गई, मेरा बिजनेस क्लास में टिकट नहीं है। He said, नहीं मुझे पता है, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम मी। ये आइडेंटिटी होती है। आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक क्लास से विदाउट एनी चार्जेस काउंटर पे एक आदमी मुझे टिकट देता है बिजनेस क्लास का। ये आइडेंटिटी है ना। और मैं यहां आता हूं या दूसरे शहर में जाता हूं, मैं कौन हूं, मेरी कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। You are a first class Yes. citizen there, and a third class or a fourth class citizen outside, wherever you are now settled. सर इतना ही नहीं, कई बार तो बहुत सहना पड़ता है, लोग आपसे बहुत बुरे अंदाज में बात करते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियल हमारे लिए क्राइसिस हो गए। अब ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग कई बार लताड़े गए, कई बार ये हो गया। मुझे एक खुशी ये है कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें आप भी हैं। एक सेटिस्फेक्शन हमारा ये है। मेरे को कष्ट ये है कि जो कलहंस का है या कश्यप मुनि का है, प्रोबेबली द कश्मीरियत जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना सर, आप लोगों की प्रोबेबली इन सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, उनका टच नहीं है उस ग्रास रूट्स वगैरह से, एंड द कल्चर ऑफ दैट ब्यूटीफुल कश्मीरी, आपका जो हिंदू कश्मीरी लैंग्वेज वगैरह का है ना, दैट इज आल्सो फेजिंग अवे। आप ही की पोएम्स हैं प्रोबेबली व्हिच कैन गिव देम स्ट्रेंथ नाउ, एंड एज फार एज वी कैन पब्लिसाइज इट, एज मच एज पीपल कैन रीड इट इन द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल्स वगैरह में ना, ये बड़ा वाइटल है सर, एज अ सिलेबस, ताकि दे शुड कम बैक टू द रूट्स एंड रियलाइज दैट कि व्हाट ऑल दे हैव मिस्ड। बिकॉज आज के जमाने में आपके जो सक्सेसिव जनरेशंस है जीनियोलॉजी में, they won't understand the pain, the remorse, probably, and the exodus, what you all have been inflicted with, at that generation, आप लोगों की जनरेशन जो है, ब्रिजदान। वेरी ट्रू सर, ऐसा है, मैं बताता हूँ। मैं ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा था, ये हमारी सिचुएशन इसलिए है, ये 3 जनरेशन, एक जनरेशन जो हमारे बड़े थे वो खत्म हो गए, अब उस जनरेशन में कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो गए वो। अब जब माइग्रेशन हुआ था, आई वॉज ए वेरी यंग बॉय, नाउ आई एम एन ओल्ड मैन। तो ये मेरी दूसरी जनरेशन, हमने वो पेन भी देखा, हमने स्ट्रगल किया, ये दिया। और तीसरी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो कोई विदेश में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, उन्होंने ये बातें सिर्फ सुनी हैं, उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। बिल्कुल सर। और आप विश्वास कीजिए, कई बार वो हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास जवाब ही नहीं होता है कि उनके दिमाग में क्यों ऐसे ख्याल आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें देखी नहीं है। दूसरा, अब उनको कश्मीर से कोई लगाव नहीं है, भाषा खत्म है, कश्मीरी भाषा नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोल भी पाते हैं तो बहुत कम। और वो जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो ट्रेडिशंस से अब वो दूर चले जा रहे हैं। इसके लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े अधिकारी से मिला था, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप जो हमारे बच्चे हैं, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उन बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जैसे एक ग्रुप श्रीनगर का, एक बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का, एक अनंतनाग,
उनको आप 10 दिन के टूर पे ले जाइए। वो अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंडर उनको ले जाइए, घर दिखाइए, देखिए ये अनंतनाग है, ये नागबल है, ये खन्नाबल है, ये अनंतनाग का चौक है, या आप यहाँ रहते थे। और आज क्योंकि मेरा रेगुलरली कश्मीर आना जाना है, हालात डेफिनेटली बेटर हैं। अभी Definitely, yes, sir. कल बिल्कुल परसों sir. भी एक हत्या हुई वहां श्रीनगर में, हबाकदुल एरिया में, लेकिन डेफिनेटली हालात बेटर हैं और लोगों में भी अब थोड़ा सा भय कम हुआ है। लोग भी अब थोड़ा बात करने लगे हैं, आपसे रिश्ते बढ़ने लगे हैं। और 2-4 चीजें हुई हैं इस बीच में, जैसे शादियों में एक दूसरे का आना जाना हुआ है। अगर किसी के घर में बेटे की शादी है तो वो अपने पड़ोसियों को बुलाता है, वहां भी यहाँ भी। दूसरा, साहित्य में आपस में जो आदान प्रदान है, अभी पीछे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ जम्मू में, उसमें ये सब लोगों की सहमति इस बात पे थी कि हमारा साहित्य, हमारी भाषा अलग नहीं है, एक ही है। तो ये सारी चीजें जो जोड़ने वाली चीजें हैं, अगर धीरे धीरे ये हो जाता है, और जो हमारी संस्थाएं हैं, मैं बार बार उन्हें बधाई देता हूँ, वो बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस सब का, वो तो रहेगा, उसको हम Yes, sir. किसी तरह से भी नहीं जुटा सकते हैं, क्या करेंगे। सर विशेष रूप से सीबीएसई का बोर्ड पूरा रिवाइज हुआ है अभी, जिसमें पोएम्स ऑफ लाल डेड, स्पिरिचुअल पीपल, इनका आया है। एक जमाने में हमें पता ही नहीं था कि द क्या कल्चर है बेसिकली कश्मीर का। हमारे समय में व्हेन आई वाज रीडिंग हिस्ट्री सर, जो 77 में मैंने हायर सेकेंडरी पास आउट किया है, उसमें आई डेंट इवन नो हमारी हिस्ट्री जो लिखी जाती थी, कल्चर जो लिखा जाता था, रिफ्लेक्शंस हुआ करती थी इरफान हबीब की, रोमिला थापर की, प्रोबेबली रामचंद्र गुहा की, और रावत की, इन लोगों की लिमिटेड, प्रोबेबली पेरोकियन लेफ्टिस्टिक फिलॉसफी। अभी के जमाने में एटलीस्ट वी आर कमिंग आउट, रियल कल्चर जो कश्मीर की कल्चर है, पता लग रहा है हम लोगों को, हमारे बच्चों को पता लग रहा है क्या हो रहा है करके। एटलीस्ट इट्स अ बिग रिवेलेशन सर। बट कभी कभी लगता है, आई होप इट इज नॉट टू लिटिल टू लेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोबेबली बाय द टाइम द होल कल्चर्स आर वाइप्ड आउट, जो अमेरिकन सिटीजंस है, जैसे आई एम अ ब्राह्मण फ्रॉम मद्रास अय्यर, we are also losing our identity, sir, fundamentally, because there's a DMK government there, as far as Tamil Nadu is there, and that is also probably swaying away anti-Brahmins, throwing them away from their states. मंदिरों का desecration हो रहा है वहां पर अभी तमिलनाडु वगैरह में। तो ये जब तक हम इसको incorporate नहीं करेंगे, probably इसको वो नहीं करेंगे, that anchoring नहीं करेंगे। जैसे you are a great anchor, sir, like a sculptor, like a painter, like a poet, you are those guys, who can put something to eternity, sir, which will remain in posterity, these kind of poems, and when people will read at this point of time, it will be an awakening for them. I'm telling you, this generation, the next generations. I mean, this Yes, very poetry true, very collection true. really very much is. बेताब साहब 8 मिनट हमारा गणती मरा चुता मुबारक गणती चुता मुबारक सान तरफ तो सो शख्सियत बह क्या कर तो ना प्लीज प्लीज ना तो ब्रोट कन मे मिशन तुता रोतब कि बह कर तो ब्रोट कन कह चीज वो गो बजान सिर्फ अख लफ्ज तुज जे बोज बह अख मरा गई कश्मीरियत यमिच वनकस कत कर तथ मज तो मजीद लकुट काव या लकुट लफ्ज बटिल वनान बत मज वेबनारस मज तो ज्यादातर बटाई पे कत करान ज्यादातर बटाई गो ब्या शाखा तथ वन बटिल तम खुद बोड़ कुल कश्मीरियत ये वन यमन दोन कह ना कह कुछ जाए फर्क अजकिस वक्तस मज ब्रो काल बट तो कशुर इन समरमाई वनकनस वचन हालातन मज बटस तो कशरस फर्क सह जन दिम बह जमनी मिसाल युथ बह नबर नीर नबर या जमि नबर बस वनकस दिल महरा युथ बह तिमन वन बह कशुर मे तम वुचान या लायान जरिया कन या मिलिटेंट अख मेन शक्ल तो लगभग तिथु हिश बे मेन आवाज तो एक्सेंट वन तिथु हिश वल बह तिमन वन पन नाव पे बह जय श्री राम आज बह बटल पे वन करान तम मे एक्सेप्ट वन तम दपान मे अच्छा अच्छा वहाँ क्या हालात हो गए आप क्यों भागे वो फर्क कश्मीरियतस तो बटल मज यह गसान फर्क रस कड़न अत पे तो इथे पन नजर शानी या तुज क्या राय अत कत पे। सर पहली बात तो आपने जो कहा उसके लिए बड़ा आभार, मगर मैं
इस पे अपनी राय देने वाली मेरी औकात ही नहीं है, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कश्मीरियत and Batil are totally two different things. Batil has nothing to do with Kashmiriyat. Kashmiriyat basically एक political slogan बन गया. हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई? We have a tradition. उस ट्रेडिशन में हमारे संस्कार भी हैं, हमारी रीत रिवाज भी हैं. We have a peculiar, a unique way of life. जिसको हम बटिल कहते हैं बिकॉज हम भट्ट हैं. भट्ट मीन्स ए विद्वान, ए वेल रेड पर्सन. बटारिका जो संस्कृत का शब्द है, बटारिका देव, तो उसी से भट्ट शब्द निकला है. तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वो एक अलग चीज है. कश्मीरियत अब एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है और ये 90 के बाद में इसका बहुत घिसा गया इस शब्द को, कश्मीरियत. कश्मीरियत देखिए दिक्कत हमारे साथ क्या हुई है. हम लोग बहुत परेशानियां झेलने वाले हैं आगे समय में. हम कश्मीर में नहीं रहते हैं. पिछले साल कोई गवर्नमेंट के आंकड़े हैं 1.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए. ये 1.5 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख टूरिस्ट जो इंडिया के गए कश्मीर, उनका इंटरेक्शन सिर्फ वहां के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ उनके साथ है. माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है. और उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कश्मीर से बाहर पूरे हमारे देश में वो लोग जो कश्मीर जाते हैं, और कश्मीरियों की परंपरा है जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज. हम लोग जो अतिथि देवो भव की बात हमारे यहाँ है, तो जितने टूरिस्ट आते हैं उनकी जब कश्मीर के लोग सेवा करते हैं तो वो कहते हैं वाह क्या बात है. तो उसमें कश्मीरी पंडित का नैरेटिव दब जाता है. Very true. हम लोगों का इंटरएक्शन उनके साथ में नहीं हो रहा है. एक बड़ी समस्या जो हम जूझ रहे हैं अभी उस और किसी का ध्यान ही नहीं गया हमारे साथ. हमको ये लगता है कि हमने ये किया वो हम कर रहे हैं. लेकिन देखिए, मैं अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई कि गूगल और इस पे ये जो वर्ड वगैरह है, इसमें कश्मीरी ट्रांसलेशन में कश्मीरी लैंग्वेज भी इंक्लूड हो गई. अब वो कश्मीरी लैंग्वेज कौन सी कश्मीरी लैंग्वेज उसमें इंक्लूड हुई? वो कश्मीरी लैंग्वेज उसमें वो कश्मीरी लैंग्वेज इंक्लूड हुई जो कश्मीर में रहने वाला आज मेजॉरिटी पीपल, विच मेजॉरिटी पीपल. उसमें फ्राइडे के लिए जुम्मा का शब्द लिखा है, उसमें फ्राइडे के लिए शुक्रवार नहीं लिखा है. उसमें वाटर के लिए आब शब्द लिखा है, उसमें वाटर के लिए पुआइं का शब्द नहीं लिखा है. बटिल तो कश्मीरियत आत्मा राशो वारिया फर्क. तो वो संक्षेप जो आप कह रहे हैं ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सर. करेक्ट. और इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया. ये बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी हमको. अगर हमको अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाना होगा. और मुझे बहुत ही दुख और खेद है इस बात का कि हमारी युवा पीढ़ी ये जंग लड़ने के लिए आमादा नहीं है. नहीं सर, ये बहुत, देखिए कुछ लोगों को ये अभी जो गवर्नमेंट चेंजेस वगैरह आई हैं, एंड प्रोबेबली पॉजिटिविटीज चारों तरफ दिख रही हैं सर, जिसकी वजह से एंड इवन सुप्रीम कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट. प्रोबेबली एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको शट ऑफ कर दिया था कश्मीरीज की प्रॉब्लम्स को, कि प्रोबेबली जो हो चुका है स्टेटस को उसको रखो करके, एंड जो पहले हो चुका है उसको रिवाइव मत करो करके. बट दे हैव रिवाइव्ड द अयोध्या इश्यू, दे हैव रिवाइव्ड द बनारस इश्यू. So time won't be long, sir. It is only a matter of time now. Probably this also has to come up in life, and आप लोग का एक ऐसा movement होना चाहिए probably चारों तरफ से with good lawyers and all, कि Supreme Court will have to take reconcile and take cognizance of it in due course of time, sir. कि whatever happened in 1980s से जब शुरू हुआ ये exodus शुरू हुआ ये displacement of so many Kashmiri Hindus, sir, is very vital. But I will just add here that even if the Supreme Court and other political authorities, they do what they do, हमारा काम है to
spotlight work from the community that you're seeing here. And Don't let the flame die. Yes, and I'm hoping that the younger generation, like my people who are younger than me, because when we moved out of Kashmir, I was also a young child. Lekin ab, I feel that everyone reaches a point in their lives when they are like, who am I? Where am I from? And that's when all these things come back. But my hope is what Betab Saab was saying. He said this to me before also once when we met. Ki jo ye, I guess there is a larger mother language, but then there is a dialect difference between the minorities and the majority community. I think there is definite work that can be done from a literary cultural perspective. For example, jo hamari, there are like, for example, institutes here, jahan main US mein rehti hu, so I can speak to that, which are trying to revive like language classes, or they are trying to create little booklets or materials for children to learn. I think one of the challenges that we face is that even within the community, is there support for that kind of work? How do you like bring people together to say that this is something we should take forward? Or bahut baar aisa hota hai ki even if one or two people take the lead, then others get inspired as well. And I will say that I have two such people here who have done this. Like I would say Betab Saab is obviously like, you know, I call him a national treasure for us, because this is not uncommon. And I want people to know that इस तरह का काम हमारी community में post 90s भी है, because many children, I'll say this, who are younger, even when I was in college, and I would meet these Kashmiri groups, and they would only talk about Kalhan and Raj Sarangini, which is not a wrong thing to say, but uske aage bhi we have moved. There are so many people who've contributed to literature, which I think you need to keep talking about to keep it alive. And contemporary literature, which Betab Saab has created so well for the entire community, whether they are majority or minority, har ek ke liye relevant. And I think that by bringing this work to light, I think we can interest people to see ki kitna kuch hai for them to learn. And the second thing is, of course, like, you know, non-profits or other like bipartisan organizations that can put together even like this kind of a webinar. I feel grateful that we have the opportunity to bring Betab Saab here and be able to share this further with people. क्योंकि अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Who cares if we don't care, right? So I think Very true. all small steps are important. वो एक किसी का शेर है ना, बेताबियां समेट के सारे जहां की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। सर ऐसा है जब कॉलेज के दिनों की बात है, जब मैंने आपसे कहा ना कि कॉलेज में मेरा फिर दोस्ती हुई उन लोगों से जिनका रेडियो में आना जाना था, तो उस समय एक प्रथा चली है कि कवि अपने ना, पहले हमारी परंपरा क्या है, सब अपने आप को, कोई तुलसीदास है, कोई कृष्णदास है, कोई कालीदास है, तो सब एक देवी का या एक अपने गुरु का दास के नाम से ही लिखते थे। यही कारण है कि आज कुछ लोग कालिदास के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कहते रहते हैं कि थे नहीं थे। लेकिन फिर बाद में ये प्रथा चली कि सब अपने नाम के साथ में, अपनी कविता के साथ में एक उपनाम लगा देते हैं। तो मेरी जिन के साथ में मित्रता थी और जिन्होंने मुझे रेडियो अपने साथ ले गया, उन्होंने कहा अब तुम रेडियो में ये पोएम पढ़ो और इस पोएम के साथ में तुम अपना नाम बेताब रखो। उन्होंने क्यों बेताब नाम रखा मेरी समझ में नहीं आया। और आज मुझे जब मैं देखता हूं ना, तो करीब करीब कोई 40 लोग हैं जिनका उपनाम बेताब है। 40 लोग हैं। कविता की बात यह है कि मैं वहाँ कश्मीर में एक डेली न्यूज़पेपर छपता था, जिसमें एक दिन मेरा ख्याल है थर्सडे या इसका वेडनेसडे का रहता था, जो युवा पीढ़ी के लिए रहता था डेडिकेटेड, और उसमें सब लोग कोई अपनी कविता लिखता था, कोई अपना कोई आर्टिकल लिखता था। तो मेरा भी बड़ा मन किया मैं उसमें लिखूं, तो मैंने एक कविता उसके लिए लिखी। वो कविता उसमें छपी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू थे प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी, वो आए मुझे ढूंढते हुए। मैं उन्हें दूरदर्शन में मिला, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था तो रेडियो टीवी भी जाता था एज ए कैजुअल प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के लिए। तो किसी ने कहा बेताब यहाँ है, मुझे किसी ने कहा हामिदी कश्मीरी आपको ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनके पास दौड़ता हुआ गया। उनका इतना आदर मान था और हम छोटे थे, बात करने से भी डरते थे उनसे। क्या उम्र तो थी आपकी सर उस समय? उम्र क्या थी?
सर मैं रहा हूँगा कोई 20-21 साल की उम्र थी। तो उस समय उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी पोइम पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लिखना जारी रखो। दैट वाज द एनकरेजमेंट एंड दैट वाज द बिगिनिंग। उपासना जी कहने हाँ, कम इन, please. आप कैसे हैं? ऐसा है जो कश्मीर 90 से पहले था, अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि 90 से पहले का कश्मीर वापस आएगा। हमको वास्तविकता को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 90 के बाद में 4-5 साल पहले तक के हालात थे, आज वो हालात नहीं है। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट हर क्षेत्र में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वहां रहना पड़ेगा, उसके लिए ताली 2 हाथ से बजती है। हमारे सामने पंजाब का एग्जाम्पल होना चाहिए कि पंजाब में कैसे 2 कम्युनिटीज के बीच में दरार पड़ गई थी, और आज आप पंजाब में किसी के साथ में टेररिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। पीपल डोंट recognize you, they don't accept you now if you talk about militancy in Punjab, क्योंकि उन्होंने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। अगर हम बार बार टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से, बार बार अपने फोरम्स के माध्यम से मेजॉरिटी कम्युनिटी को गालियां देते रहेंगे और माइनॉरिटी कम्युनिटी को बुरा भला कहते रहेंगे, तो वी आर नेवर गोइंग टू मीट। So to meet, to restore that mutual confidence, we have to forget the past. We have to bury. हमारे गिले शिकवे बहुत हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन गिले शिकवे एक ढंग से आपस में बांटने पड़ेंगे। जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा। जो तलखियां हैं, उनको मिटाना पड़ेगा। अगर हम बार बार कुरेदते रहेंगे तो ये लहू, ये रक्त बहता ही रहेगा। इस पे मरहम लगाने की आवश्यकता है। अगर कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में रहना है, बसना है, तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि वो वहां तन्हाई में, अकेले में नहीं रह सकता है। उसे मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ में मिलकर रहना ही पड़ेगा। उसके लिए ताली 2 हाथ से बजानी पड़ेगी। You have to accept something and they have to accept something. Only then we can meet. Absolutely right. This is such a wonderful thought to actually bring this conversation to close. और मैं ये चीज ना, I think a lot of people forget, and it is something that we need to bring out in our spotlight, कि the culture of the valley was mixed. Even in when we read Lal Ded, we go that far, हम देखते हैं कि influences दोनों तरफ से थे उनकी poetry में. So when we think about our culture, we have to think about the culture as this being a beautiful place where there were multiple different kinds of ideologies that were practiced, but they were living in harmony. And in any place of conflict, unless you have that harmony of coming together, or you have the feeling कि आप साथ आएं, तब तक वो मुश्किल है. But our job today was not necessarily to think about a solution, because उसके लिए तो हमें बहुत, I don't know if I am the right person to even start even that conversation. But our job here was to celebrate Betab Saab, talk about his poetry, talk about his influences, which I hope that you have enjoyed and experienced. Just having him live here is so wonderful. और इतने सारे छोटे छोटे anecdotes सुने उनके writing के. And Betab Saab, yes, please. 20 seconds, just 20 seconds. Sorry for that. Of course. मैं सबसे ये कहता हूं कि कश्मीर के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर था, जिसमें सब धर्मों के लोग साथ में मिलकर रहते थे, उसको बचाना है। और उसको बचाने के लिए कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी को बहुत बड़ा योगदान देना होगा, नहीं तो ये कल्चर खत्म हो जाएगा और ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। Absolutely right. Absolutely. Great way to end. So I will just say thank you so much जिन्होंने यहाँ पे attend किया. इसके recording में मैं भेजूंगी, where we will spotlight again बेताब साहब's wonderful anecdotes and poetry. और अगर आपके पास ये किताब ना हो तो प्लीज अपनी लाइब्रेरी या कोई भी किसी हर जगह अवेलेबल है ये किताब, so you can look it up. Harud, beautiful poetry. Of course बेताब साहब ने 4 languages में लिखा है, but English is the language I read in the most, इसलिए मैंने इसको बहुत enjoy किया. And you will definitely go through
it's an emotional read. So I encourage everyone कि अगर आपने ना पढ़ी हो, आप please उसको उठाइए और पढ़िए इस किताब को. It's very very wonderful. Thank you so much, बेताब साहब, especially. नहीं, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, आपने इतना समय दिया, इतने महान भावों से मेरी बात कराई, सबके विचार सुने और मुझे भी कहाँ तकरीर करने का अवसर मिलता है. थैंक यू सो मच.